So everybody, welcome to our regular Thinking Thursday. And today we have Shakuntala ji, who's going to be talking on the virtues from the Bhagavad Gita. Virtues, as we know, are extremely important in life. They affect our thoughts, they affect our behavior, and they, of course, affect the quality of life. So Shakuntala ji is going to today discuss and throw light on these virtues. These are basically positive qualities that we all have to develop so that we can live our life better. So Shakuntala, over to you, and let us understand about the virtues as expounded by Sri Krishna. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Let us begin with this. Virtues from Bhagavad Gita. This is something we all need to cultivate in our life. So the virtues which I am going to discuss today with all of you are just 8. First is Amanitvam. Second is Adambitvam. Third is Ahimsa. Fourth is Kshanti. It is not Shanti, but Kshanti. We are going to understand it later. Fifth is Arjavam. Sixth is Shocham. Seventh is Satyam. And eighth is Akrodha. Opposite of Krodh, Akrodha. Source is Bhagavad Gita, chapter 30, verse 7. And from chapter 16, it is the second verse, which I have taken up. So first of all, it is Amanitvam. Okay, this is a Sanskrit word. Let us understand. I hope how many of you know about it or heard about it. Anyways, let us begin it with the Amanitvam. Let us understand the meaning of it. Amanitvam is basically, if you see the Sanskrit word, Tva means ness, A means absence or opposite. Okay, so if you just remove this Tvam or it remains Man. Man means you can say some sort of ego also. Man, Abhiman, something like that. Okay, so this is opposite of Man. And Tva means ness. So it is egolessness. So it is basically, you can say, humility. In Hindi, if we translate, Amanitvam means Shrestha ke abhiman ka abhav. Means you might be having certain superior quality. Even if after having those superior quality, we should not have pride of that. So simply absence of pride of superiority. So now let us go ahead. Mana, that is the middle word. Mana means ego. And so amanitvam means egolessness. As I said, a means less. So egoless, and tvam means ness. Tvam, that is egolessness. Now Ramana Maharshi has said, destruction of ego is the greatest austerity. The first thing we need to, if we are on the spiritual path, the first thing we need to work upon it is we need to drop the ego. That is the must. Okay. Now I have taken all this detailed commentary from this particular book, Indispensable Values. It is written by Swami Aparajitananda and it is published by Chinmay Mission. So you all can get it and get the details from this. So Amanitvam, now how to, it is egolessness we just understood. Now, how to become egolessness, how to drop the ego, how to puncture the ego, then these are the 4 important points which Swami Aparajitananda says in his book. Okay, I am nothing, I know nothing, I have nothing,
I can do nothing. This is basically the permanent realities of life. If we go in deeper now, suppose if a person says, I'm a very good cook, okay, I can cook anything, right? In that case, suppose something has to happen 2, 3 days later and you have to prepare food, everything, but some unfortunate thing happens with you, you met an accident, and suppose you are on bedridden, will you be able to do that no matter how good cook you are? So things are not in our hand. It is, we all know. So we need to practice this every day if we really want to puncture our ego, if we really want to develop or go on the spiritual path. This leads to humility and gratitude. जितना ज्यादा हम अपना ईगो को ड्रॉप करेंगे, हमें उतना ही ह्यूमिलिटी, विनम्रता आएगी, एंड वी विल बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव. Like, suppose if I say I'm a very good cook, I can do this and all that. Okay. But if I'm not grateful for the things, the situations which God has provided me, because of that, I'm able to do the certain task. Because God is keeping my body healthy. That is why I'm able to do, and God has provided all the situation. That is why I'm able to do all such things. So we should be grateful to God. So true humility is staying teachable regardless of how much you already know. This is again a true humility. आपको कितना भी आता हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो you should be able to learn it. You should be able to stay teachable. So Shakuntala, Yes, if ma'am. if I can share a story Yeah, based why on not? this. Why not? Why not? Please. Okay. Huh. So there was a, I'm sharing this story because it is so relevant for us, okay? Especially people who have children or who want others to change. किस तरह से आपको ह्यूमिलिटी के साथ इस चीज को करना चाहिए, ठीक है? तो एक माँ थी, उसका बेटा बहुत ज्यादा मिठाई खाता था, स्वीट्स खाता था, चॉकलेट खाता था। तो वो माँ ने कहा कि बेटे तुझे चॉकलेट खानी बंद करनी चाहिए। तो शी टुक दिस लिटिल बॉय टू ए स्वामी जी। हाँ, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जरा मेरे बच्चे को कहिए कि चॉकलेट नहीं खाए। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसे करो, तुम 4 दिन के बाद आओ। तो माँ ने कहा कि भाई 4 दिन के बाद क्यों? बोले नहीं, आप 4 दिन के बाद आओ। तो स्वामी जी 4 दिन के बाद माँ जो है बच्चे को लेकर आई स्वामी जी के पास। और स्वामी जी ने बच्चे को कहा कि बेटे तुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। The way he said it with so much of humility that the child said, okay स्वामी जी मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा कि स्वामी जी आपने 4 दिन के बाद क्यों बोला? तो ही सेड कि मैं 4 दिन, मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है, तो मैंने 4 दिन मिठाई नहीं खाई। और मैंने देखा कि क्या होता है जब वो क्रेविंग होती है, जो एक अटैचमेंट होता है। नाउ व्हेन आई एम टेलिंग दिस बॉय कि बेटा मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूं बच्चे को। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रीच, और आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ईगो कि बेटा मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं इसलिए तुमको बता रहा हूं। नहीं, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो ट्रू ह्यूमिलिटी, आपने जो ये स्लाइड डाली है, ट्रू ह्यूमिलिटी स्टेइंग टीचेबल, इसी से मुझे याद आया कि ये कहानी में स्वामी जी इज स्टिल टीचेबल। वो अभी भी अपने आप को सिखा रहे हैं। अब उस एक्सपीरियंस से वो जब बच्चे को कहते हैं, तो द चाइल्ड लिसन्स टू स्वामी जी। ओके, तो ये मैं कहानी बताना चाहती थी। Thank you so much, ma'am, for this sharing. Okay, now, even for ego, Neil Donald Walsh has written in his Conversation with God, Book 1, wonderful thing. If people brag and show off a lot, it raises the question,
what do they dislike about themselves so much that they feel they have to get others to like them to compensate. सिंपल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई लोग ईगो और बहुत ज्यादा ईगो या शो ऑफ वो करते हैं तो एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या कमी है उनमें। एक संस्कृत में एक वर्ड आता है परिच्छिन्न। हमारी सबकी प्रॉब्लम ही ये है, हम सब में हमको लैक महसूस करते हैं। वी फील वी आर परिचिन, वी आर नॉट परिपूर्ण, वी आर नॉट होल, बट वी आर लिमिटेड, फाइनाइट, या हम में कोई कमी है। उस कमी को छुपाने के लिए, टू कंपनसेट दैट, लोग बाग ईगो रखते हैं, शो ऑफ करते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अमानित्वम। तो हमें अमानित्वम करना है अपने में डेवलप, दैट इज हम में मान का, जो श्रेष्ठता के अभिमान का वो अभाव होना चाहिए, वो लैक होना चाहिए। अ मीन्स उसका अपोजिट, वो नहीं होना चाहिए। सिंपली ईगोलेसनेस को डेवलप करना है, ह्यूमिलिटी को डेवलप करना है। देन ओनली वी कैन मूव फर्दर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। सेकेंड टर्म आती है, ये सब भगवत गीता के चैप्टर 13 का 7th श्लोक है, जस्ट 7th श्लोक। ऑल दीज टर्म्स आर मेंशन। नाउ दिस इज adambhitvam. What is this adambhitvam? Okay, again in the same manner, means opposite. Okay, dambha is the word which we need to focus on. This is, you can say, vice, and we need to टर्न इट टू इन वर्च्यू। हमको इसको, ये एक अवगुण होता है दम, इसको हमें सद्गुण में बदलना है। तो अदम्भित्वम, व्हाट इज दैट? दंभ मीन्स दंभ आचरण का अभाव, दैट इज द मीनिंग। और सिंपली वी कैन से नो शो ऑफ। दंभ मीन्स शो ऑफ, and this is absence of show off, or you can say lack of hypocrisy. So dambha is the tendency to show off. We show off everything which we are proud of. We all have recognition hunger. Last class जो टीए की क्लास थी उसमें we have understood this very well. जो strokes हमें देना पड़ता है, because we all have recognition hunger. और उस recognition hunger की वजह से हमें दंभ आता है, और ego craves recognition and praise. Okay, now this is the term, the first term, that was amanitvam, and this is adambhitvam. So dambha and that ego, they go side by side. ये siblings ही हैं, यही मान के चलो, कोई अलग टर्म नहीं है। और ईगो क्रेव्स रिकॉग्निशन एंड प्रेज, ओके, और जिसकी वजह से दंभ आता है। नाउ व्हाट इज दंभ? सी मान, जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था अमानित्व में मान, दैट अभिमान या श्रेष्ठता का अभिमान, दैट इज दैट मान ऑलवेज गोज टुगेदर विद दंभ। ओके, सो वॉट एवर वी आर प्राउड ऑफ, only that we tend to show off, right? Proud of means the ego part, and that we want to show off, that is the dambha part. In fact, if you see, go in deeper detail, then the dambha will be much more than ego. Sometimes there are certain traits, talents, or things which maybe we may not acquire, still we want to show off. Sometimes we show off even for those things which we don't possess. हमारे पास जो चीज है नहीं उसका भी शो ऑफ करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो दंभ। नाउ शोइंग ऑफ is a sign of spiritual malnourishment. Why is it so? Because, see, here the term comes parichinna. We feel, because हमारा स्पिरिचुअल पूरा प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हुआ है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर आत्मा, वी आर होल, वी आर परिपूर्ण, and we think we are this limited body. We have
certain lacks, we have certain limitations, and that is why we think we all are limited. So वो spiritual malnourishment है जिसकी वजह से हमें एक lack की भावना आती है, एक कमी की, अभाव की भावना आती है, and then we show off. So the joy derived from praise and recognition is an egoistic joy. ये जो बाहर से हमको जो जॉय मिल रहा है ये ईगोइस्टिक जॉय है, टेम्परेरी है. नाउ हियर इसको हमको ओवरकम करना चाहिए. नाउ इवन मदर से टेरेसा सेड दिस थिंग, देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड एप्रिसिएशन इन दिस वर्ल्ड देन फॉर ब्रेड. इतनी ज्यादा हंगर है हम लोगों में इस पर्टिकुलर चीज की कि खाने से भी ज्यादा, भोजन से भी ज्यादा हमें अप्रिसिएशन चाहिए. Okay. Now, mana always goes together with tamba. That means ego always goes together with show off. So we can consider both ego and show off are siblings. Okay. Now, what Albert Einstein say about ego? He says ego is equals to 1 upon knowledge, or ego is inwardly proportionate to knowledge. More the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more the ego. So if you really want to develop more knowledge, you keep dropping your ego. As and when you drop the ego, your knowledge will be enhanced. Another important quote I just want to share with you that these days, a relationship never dies a natural death. They are murdered by ego, attitude, and ignorance. So again, this is something we need to work upon it, and we should drop the ego as and when possible, as soon as possible. Okay, now the third virtue is ahimsa. Third virtue is ahimsa. We all have heard this term ahimsa very well, and we all know that Gandhiji used to follow Satya and ahimsa. But what we understand normally about ahimsa is physical, but it is something more than that. Okay, ahimsa means harmlessness. Now, general meaning is not hurting anyone physically. This is what we understood. Okay, what Gandhiji told us and all that, we understand only this. But actual meaning is what our Shastra says, what our scripture says is ahimsa means not hurting others at the thought, word, and deed levels. किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, मन, वचन या कर्म से. ठीक है, मतलब आपके मन में भी किसी के लिए बुरे भाव नहीं आने चाहिए. ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो प्रैक्टिकली, लेकिन मन में भी भाव आ गए तो दैट इज ऑल्सो हिंसा. डू नॉट हरस एनी लिविंग बीइंग इन एनी वे. दैट दिस इज अहिंसा. नाउ अहिंसा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी को मारे ही नहीं. अगर हम, इफ यू सी भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? द अपोजिट साइड में जो है, युद्ध करो और उनको मारो, और सामने चाहे आपके रिश्तेदार ही क्यों ना खड़े हो, आपके गुरु भी क्यों ना खड़े हो, उनको ही मारो. ही इज आस्किंग दैट, और उसी में ये अहिंसा समझा रहे. तो इसका क्या मीनिंग है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनके लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है, इनके हमको इम्प्लाइड मीनिंग समझना है इनके टर्म्स के. तो अहिंसा हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. डिफरेंट लेवल पे इसके डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. फॉर अ मॉन्क लाइक सन्यासी, उनके लिए इट इज एप्लीकेबल 100% एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस. ठीक है, किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो. दैट इज एप्लीकेबल टू सन्यासी पीपल, मॉन्क पीपल. ओके, बट फॉर हाउस होल्डर लाइक अस, when in danger or difficulty, it is okay to fight and protect yourself.
इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आजकल हम हमारे घर में सब लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, नहीं करते? यस, नो? ओके। यस, करते हैं। करते हैं। और करते हैं तो उसमें बहुत बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, वो मरते हैं। इज इट ओके और नॉट? ये क्वेश्चन आता है। वी कैन सिंपली से यस, इट इज ओके बिकॉज दे आर हार्मफुल। और जो मॉस्किटो हैं, उनके उनके लिए भी हम कुछ न कुछ लगाते हैं। तो उससे अगर हम ना लगाएंगे तो हमको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। और इसी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर हार्मफुल। तो इनको आप एक असुरों की सेना समझ सकते हो। और इनसे हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही है, बचाना ही है। सो फॉर अ हाउस होल्डर, द मीनिंग ऑफ अहिंसा इज डिफरेंट। हमको थोड़ा सा लिबर्टी मिलती है। देन वी गो अहेड फॉर क्षत्रिय पीपल। ओके, क्षत्रिय। क्षत्रिय पीपल यूज टू बी लाइक, हमारा शास्त्र में जो टर्म है वो मॉडर्न डेज में आर्मी पीपल, पुलिस पीपल। तो उनके लिए डिफरेंट रूल अप्लाई होते हैं। नाउ इफ वी सी, wars आर नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी युग ले लो। इफ यू टेक त्रेता युग, भगवान राम। अब भगवान राम की वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया, लेके गया, तो वो उनको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? और भगवान राम वैसे भी क्षत्रिय हैं। सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। सेकेंड, वी कम टू द्वापर युग। द्वापर युग में लॉर्ड कृष्ण, तो वो चाहते तो युद्ध ना होने देते, रोक सकते थे, बट इसको उन्होंने नाम दिया धर्म युद्ध। अब वो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो वो दुर्योधन जो है, दुर्योधन टाइप लोग, दे अंडरस्टैंड ओनली द वॉर लैंग्वेज। वहां पे वो जरूरी था। सो वॉर आर नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। नाउ इफ यू टेक इन कलयुग, पाकिस्तान कभी पुलवामा अटैक करता है, तो फिर इंडिया को एयर स्ट्राइक करनी ही पड़ती है। उसके बाद में अभी जो रिसेंट 2025 में जो अटैक हुआ, उसके लिए हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। नहीं तो ये टेररिस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये असुर हैं। ये असुर अपना असुरी स्वभाव दिखा रहे हैं। तो इनके लिए तो जो भी आर्मी पीपल हैं, पुलिस पीपल हैं, जो क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम ही है प्रोटेक्ट करना, दे हैव टू फाइट। एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। सो अहिंसा का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लाइड मीनिंग। बट यट जो हम डे टू डे लाइफ में हमारी स्पीच से, यहाँ पे मर्डर और इनकी किलिंग की तो बात ही नहीं आती। सिंपल हमारी स्पीच से, हमारे वर्ड से अगर हम दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, वी शुड स्टॉप दैट। वी शुड स्टॉप दैट। दिस इज ahimsa. So here the law is given. Okay, what is the law? In unavoidable circumstances, for protecting the whole, the part can be sacrificed. This is the law. Mahabharata says to save a family and individual can be sacrificed. To save a village, a family can be sacrificed. And to save a nation, a village can be sacrificed. So this is allowed. ये सही है. Now, under choiceless circumstances, for protecting the higher and the more evolved beings, the less evolved beings can be sacrificed. This is the law given in our scriptures. All right, next we come to the fourth virtue. I hope this is the word you must have heard for the very first time. It is not Shanti, but it is Shanti. K-S-H-A-N-T. Shanti. Okay. So this is absolutely a new term. Let us understand what is this. Shanti is somewhat related to, you can say, Kshama plus Shanti. Both. You can understand like this. Ksha for Shanti, Ksha for Kshama. Kshama is forgiveness, but Shanti is forgivingness. Okay? Endurance, ability to forgive,
forbearance. Now, its meaning is very, we need to understand it. It is not just simple forgiveness. No, it is little different. Understand. Let us understand in Hindi, then we'll go ahead. दूसरे ने तुम्हारा नुकसान या अपमान कर दिया तो भी उनके प्रति तुम्हारे चित्त में, इन योर माइंड, कोई दुर्भावना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. इट इज रियली डिफिकल्ट. बट इसका एंड रिजल्ट क्या है? यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, even if someone harms or insults you, you should not develop ill feeling towards them. कर दिया, वो जिसने किया वो अनजान है या वो नासमझ है इसलिए किया. दिस इज द सेम थिंग वी कैन सी जो लॉर्ड जीसस ने फॉलो किया था. उनको, उनके जो भी लोगों ने बांध दिया था और क्रूसि उस पे, क्रॉस पे उनको हैंग करके बांध दिया था, कीलें भी ठोक दी थी, उनके लिए भी उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान इनको माफ कर देना, बिकॉज ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. दैट वॉज शांति. ठीक है. सो दूसरे के लिए हमारे चित्त में भी ना आए, ये थो बहुत आगे प्रैक्टिस करने पे आएगा. बट एटलीस्ट वी शुड नो दैट दीज आर द वर्च्यूज वी कैन एंड वी शुड प्रैक्टिस. हमारे मन में ही ना आए, इतना अगर हम प्रैक्टिस कर लें, हमारे मन में ही कोई इल फीलिंग ना आए, वो बहुत आगे के स्टेप की बात है. बट देन दैट विल बी अ वर्च्यू. उससे हमको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, और पीस ऑफ माइंड कैन लीड टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. नाउ सपोज, अब इसके भी अपोजिट थिंग है, वही लिटरल मीनिंग नहीं लेना. ठीक है. नाउ सपोज a hardcore criminal is brought in the court, and if the judge says, I forgive you, then is it correct or wrong? Absolutely wrong. So, वहां पे ये नहीं चलेगा. So, we need to see कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है. So, be mindful, don't take literal meaning, but understand the implied meaning. इसीलिए हर वर्ड को, हर स्क्रिप्चर के टर्म को हमको डीप में जाके समझना है. बट बेसिकली इट शुड बी, एवरी ऑल दीज वर्च्यूज आर गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल. अभी किसी क्रिमिनल को हम अगर सजा नहीं देंगे तो वो तो और ज्यादा नुकसान करेगा. सो दैट इज नॉट अलाउड, राइट? Okay. Fifth one is Arjavam. Absolutely new term, I think, for all of you. And this is the term because of the which Arjun has got that name. The name Arjun is derived from Arjavam. Interesting. पूरा हम जानते हैं भगवत गीता, और इसमें सबसे मेन रोल लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन को याद है, सिर्फ अर्जुन को ही ये सुनाई थी. बट इसका मीनिंग क्या है? अर्जुन नाम का मीनिंग क्या है? दैट इज, वो डिराइव हुआ है वर्ड आर्जवम से, जिसमें आर्जव है वह अर्जुन है. नाउ व्हाट इज दिस आर्जवम? द वन हु हैज आर्जवम इज अर्जुन. व्हाट इज दिस टर्म आर्जवम? इसका मीनिंग है uprightness of speech and mind, etc. Simplicity, absence of crookedness. This is Arjavam. Okay. मन वाणी काया का एक रूप होना, मन वाणी आदि की सरलता, मतलब दिस, वो सब आपका माइंड बॉडी स्पीच वो सब अट्यून होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए. देन दिस इज कॉल्ड आर्जवम. अर्जुन में ये था. व्हाट वाज दैट? उसमें क्रुकेडनेस बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम सिंपल, सिंप्लिसिटी. दैट इज कॉल्ड आर्जवम. ओके. absence of crookedness. Okay. Now we can further explain it. Thinking, speaking,
and behaving all in one line, all in tune. Okay. So whatever we think, we speak. And whatever we speak, we do. If this is the thing in our life, then we are following Arjava. This is what the quality of Arjun. That is why Arjun was called Arjun. The name Arjun is derived from this Arjava. Okay. Now we can give an example. We don't follow this in our normal course. Okay. We think something and we speak something. I can give you an example, and that is inviting a guest half-heartedly. Many of time people say, वो फॉर्मेलिटी में बोलना पड़ता है ना, बट अंदर से क्या चाह रहे हैं? नहीं, ना ही आए तो अच्छा है. Okay, so this is, we are not following Arjavam. This is called crookedness here. Okay. Okay. Then the next is Shaucham. This is fantastic. The sixth virtue which I have taken from this, again, 13 chapter, 7th shloka, Shaucham. What is that? Purity. This is purity. Little difficult one, but we should at least understand what is that. हो सकता है हम आज इसको अपने लाइफ में अप्लाई ना कर सकें, नेवर माइंड, बट हम उसकी तरफ जाएं तो सही, उसको देखें तो सही. माना कि हमारी आज डेस्टिनेशन ना हो पूरी तरह से, बट एटलीस्ट हम गूगल मैप तो देखें. सो व्हाट इज दैट? शौचम इज बेसिकली प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. नाउ प्योरिटी ऑफ बॉडी वी नो, cleanliness of body we know, we all know, and we do not need to discuss here. So let us focus on purity of mind. What is that? How can we achieve it? And how the impurity comes to our mind? This is something little complicated, little difficult. So just pay attention to this. Purity of the mind is a great virtue. The inability to tolerate the impurities of the mind. This is the great virtue. Means our mind should be so pure that कि थोड़ा सा भी impurity आए तो हमें को अच्छा नहीं लगना चाहिए. Inability to tolerate that. That is called purity of mind. Okay. This particular thing, if we develop, this is also mumukshutvam. Okay. How? The desires to free the mind from impurities. अगर हमारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा रहेगी कि हमारी सारी इम्प्योरिटीज जो माइंड की है वो ना रहे, जो है वो खत्म हो जाए, then this is going to be the purity of mind, Shaucham, perfectly. This desire makes us diligent and regular in our spiritual practices. ये चीज हमें spiritual practice में काफी ऊपर लेके जाएगी, and then we can somewhere go near to the mumukshutvam. Mumukshutvam is the attaining the moksha, मोक्ष प्राप्ति. Okay? और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो इच्छा होती है ना, तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व. The desire to attain moksha. Okay. Now, Shaucham. If we do not keep the mind pure, gradually we become comfortable with an impure mind. अगर हम डेली अपना माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, then we'll be comfortable with the impure mind. पढ़ाए. Some people are like that. उनका अगर रूप बहुत ही मेस में है, they like it. वो they are habitual of that. See, this shaucham or the purity is, or cleanliness is not only of your body, mind, and environment also. So some people are happy with that environment. Then those people, you may find that their mind is impure. Okay. If your environment is impure, then your mind will be impure, and they are okay with that. So then they will not put that effort. Okay. And when we are comfortable with the impure mind, then that comfortable impure mind becomes the greatest enemy in our spiritual progress. फिर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्पिरिचुअल
प्रोग्रेस हमको डेली कुछ साधना करनी पड़ेगी, डेली कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा, डेली कुछ ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे मन में इतनी इम्प्योरिटी है तो हम उसके लिए कभी भी टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, कभी बैठ भी नहीं पाएंगे। व्हाट मेक्स द माइंड इम्प्योर? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि गंदा कैसे होता है माइंड। इसको क्लीन तो करना है, बट गंदा कैसे होता है वो चीजें पता लगेंगी तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे। When we interact with the world with the wrong notion that the world can give us happiness, the mind entertains likes and dislikes. रमन्ना महर्षि कहते हैं और भगवान शंकराचार्य भी ये कहते हैं कि ये जो हमारी माइंड की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, दिस गिव्स impure mind. These likes and dislikes pollute the mind. Hence, Bhagavan Shankaracharya says the likes and dislikes are the impurities of the mind, and one must clean the mind through pratipaksh bhavana. Now, this is a new term. Let us understand what is this pratipaksh bhavana. Okay. Now, pratipaksh bhavana, understand paksha. Paksha means one side. Pratipaksh means the other side. And bhavana means thoughts. So, if we start thinking the contrary thoughts, then we can clean the mind. Okay, let us first understand what are paksha bhavana. We need to cultivate this by using pratipaksha bhavana. That is one thing. But let's understand what is paksha bhavana, opposite of that. The mind entertains the wrong notion that the world, that is the non-self, is the source of all joys. People think कि सारी मटेरियल वर्ल्ड और इन्हीं में ही हमको जॉयज मिलेंगे, सारी खुशी ये मटेरियल रिसोर्सेस में ही है। दिस इज पक्ष भावना। ओके, सच अ माइंड गेट्स अटैच टू द वर्ल्ड, और फिर वो जब चीज नहीं मिलती है तो एजिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं और इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है माइंड की। Such a mind gets attached to the world and then develops likes and dislikes toward things, beings, and situations and become impure. This is called Paksha Bhavana. Then, how to purify such a mind? To do Pratipaksha Bhavana by entertaining contrary thoughts. इसे हमें practice करना है. How? The mind becomes impure whenever it gets attached to the world of sense objects. The impurity is expressed as agitation in the mind. Every agitation in the mind must be a reminder to us that the world is not the source of happiness. This is little difficult to understand or to comprehend. एक बार से एकदम से digest नहीं होगा, but slowly, gradually, if you are actually seeking liberation, then this will help. Every time we meditate upon the Lord, the mind becomes peaceful. This is the proof that the source of happiness is Lord alone, not the world. The process of constantly reminding ourselves of the fact that God alone is the source of happiness and not the world is called प्रतिपक्ष भावना. अगर ये थॉट, ये क्लैरिटी हमको आ जाएगी, then we will keep purifying our mind, or one day it will be purified. Now, what is the proof of purification? A mind undergoing purification becomes increasingly peaceful, cheerful, dispassionate, and content. The noble virtues are spontaneously expressed in it. The vices rarely manifest in it. The possessor of such a divine mind becomes increasingly happy and blissful. This is the proof that the purification process is happening in us through our spiritual sadhana. So धीरे धीरे हम पीसफुल रहने लगेंगे, चेयरफुल रहने लगेंगे, निश्चिंत रहने लगेंगे, संतुष्ट रहने लगेंगे,
और ज्यादा हैप्पी और ब्लिसफुल लगने लगे, तो हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड सही जा रहा है, नहीं तो अभी नहीं है। Some chats. All right. Now, seventh is Satyam, my favorite. This is my favorite. Now, this particular virtue is taken from chapter 16, verse 2. Okay. What is Satyam? We all know. Satyam is not just speaking the truth. This is what? Truthfulness and geniality of speech. यथार्थ और प्रिय भाषण, खाली सच नहीं बोलना है, वो स्वीट भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए। नो बिटर ट्रुथ। सम पीपल से वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हम कुछ भी कड़वा सत्य बोल सकते। नो, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट सत्य। ओके। एंड नो स्वीट लाइज, झूठ भी नहीं बोलना है। यहाँ पे एक फेवरेट श्लोक आता है, एंड विच I learned by heart when I was in class 6. So I mention it. So let me recite it. Satyam buryat priyam buryat. Na buryat satyam apriyam. Priyam cha nanetaram buryat. Esha dharma sanatana. This is our Sanatan Dharam. That speak the truth. And whatever you speak, speak the sweet thing. But never speak any don't tell lie, and don't speak bitter truth, like that. Okay. Now this is simple, in simple English. Speak truth, speak sweet, no harsh truth, no sweet lies. Then the question arises, जब ये situation आए तो क्या करें? Then the answer is remain silent. So you can have gatekeeper on your mouth, that whatever you are going to speak, find it out. First, is it truth? Okay. Is it sweet? Fine. Is it necessary? Now the third question answers this thing. If it is a harsh truth, if it is not necessary, remain silent. And there is no need to speak sweet lies. बोलने की जरूरत नहीं है. Okay. When you, acha, now, why to speak satyam, or what happens if you tell a lie? When you tell a lie, you need to back up it with many more lies. आपको एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं. Okay. Now speaking the truth gives you freedom of speech. आपको बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहना है. You can speak anything because you are all the time speaking the truth. Okay. It gives you inner strength, a unique power. Actually, this particular virtue, I can speak, and I have not taken any commentary from anywhere. Actually, I have practiced it from more than 35 years. That is why these conclusions are my own conclusion. I'm sharing with you that initially when you start practicing the speaking the truth, तो एक दिन में I realized at least we speak 8 to 9 lies, बिना, with no requirement, just unnecessarily we tell lie. Okay. But once you start very, very firm and you start, you stick to the satyam, then what happens? Initially it will be difficult, but after practicing for some years, you will find a unique inner power, inner strength in you, and you are free to speak because all the time you are speaking the truth. And maybe of 10 years of practice, then it will be imbibed in you. इसके बाद में कोई झूठ बोलने के लिए बोलेगा भी ना, आप बोल नहीं सकते. इट इज थोड़ा सा प्रैक्टिस. ईच एंड एवरी वर्च्यू को यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर years and years and years, and then it will become your strength. So truthfulness leads
you to become trustworthy. This is what I found. People simply trust you, and otherwise, also, when the other person is telling lie, you can just make it out very easily. This is the power of speaking the truth. Now, if you see, after practicing this, I found that the arjavam, the fifth virtue we discussed, that comes automatically. What is arjavam? This is the absence of crookedness. Okay, your body, mind, speech means what you think, you speak. What you speak, you do. So that comes automatically. So if you practice satyam, automatically you will practice arjavam. All right. And then if you see adambhitvam, no show off, no need. So this comes automatically. Once you practice this, you will get all these automatically. This is my own finding, which I'm sharing with you. Okay, now this particular portion I've taken from a book. Sometimes telling a lie can be preferred. Okay, a lie that can encourage and inspire is far better than a truth that breaks the heart. Here, I want to take that example which is given in this book. Okay, the story is given that there was a person who was in hospital and he was dying basically. और उसका बेटा जो था ना वो आर्मी में था तो उसे इंतजार था कि मेरा बेटा आएगा एंड देन वो मेरे से बात करेगा एंड थोड़ी देर में नर्स आती है और वो एक आर्मी मैन को लेके आती है और वो आर्मी मैन उसके साथ पूरी रात बैठ के उसके साथ बातें करता रहा और जो ओल्ड मैन था ही वॉज अबाउट टू डाई मतलब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था एक रात का ही था तो वो उसको अ, बस इतना ही धुंधला ही दिख रहा था कि अच्छा ओके कोई यूनिफॉर्म में है और मेरे पास बैठा है तो पूरी रात वो आर्मी पर्सन उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा आफ्टर सम टाइम जब मॉर्निंग होते होते उसकी डेथ हो जाती है तो वो आर्मी पर्सन जाता है नर्स के पास तो नर्स उसको थोड़ा सा इम्पैथी बताने लगती है तो आर्मी मैन उसको वहीं पे रोकता है बोलता है हु वाज ही तो नर्स सोचती है ये आपका इंतजार कर रहा था आपके फादर नहीं है देन द आर्मी पर्सन सेड नो इनका बेटा मैं तो इस हॉस्पिटल में ये इन्फॉर्म करने आया था कि एक कोई मिस्टर है जो भी नाम है उनका बेटा ही डाइड इन द वॉर ओके मैं तो ये इंफॉर्मेशन देने आया था तो वो पूछते हैं कि क्या ये वही आदमी है एंड नर्स वाज लाइक दिस ओके हाँ वो वही आदमी है तो एक्चुअली वो आर्मी पर्सन उनको उनके बेटे की डेथ की न्यूज देने आया था बट वहां पे उसने एक ये यू कैन से कि वो ट्रुथ नहीं बताया उससे क्या हुआ एक रात और उसने अपना थोड़ा ड्यूटी भी की तो एक रात उसने पीसफुली बिताई जो उसकी आखिरी रात थी ऐसे लाए अच्छे हो सकते हैं ऐसे केसेस में यू कैन टेल लाई ओके a lie that can encourage and inspire is far better than a truth that breaks the heart ओके एक एक लाई तो युधिष्ठिर को भी बोलना पड़ा था ओके ड्यूरिंग द वॉर ओके वो जो भी स्ट्रेटेजी थी उसमें उनको बोलना पड़ा था अदरवाइज युधिष्ठिर यूज टू स्पीक ऑल द टाइम ट्रुथ और इसीलिए उसके रथ के पहिए धरती से कुछ अंगुल ऊपर रहते थे दैट वॉज द पावर ऑफ ट्रुथ ओके a lie that brings in peace and harmony is preferred to a truth that can do otherwise. When the intention is noble and divine, even a lie becomes glorious and fine. Otherwise, we should practice truth और जो truth की जो power है you can feel it. That is wonderful. Last and eighth is akrodh. We all know what is krodh, anger. Opposite of anger is akrodh. Okay, this is again from chapter 16, verse 2. Okay, now absence of anger even on provocation. कोई आपको उकसा भी रहा है तो भी आपका नुकसान भी कर रहा है तो भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए
sort of kshanti, but this is different. But anger, now, anger is considered to be one among the vices which takes us directly to hell, says Bhagavad Gita. भगवत गीता के 16 चैप्टर का 21 श्लोक यही है, ठीक है। वो खुद ही कहते हैं कि दिस इज डिजायर, एंगर एंड ग्रीड। और डिजायर की जगह बेसिकली दिस इज कामा, दैट इज लस्ट, ओके। दीज थ्री ट्रिपल गेट्स ऑफ hell bring about the downfall of the soul. Therefore, one should shun all these three. इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, राइट। सो क्रोध के लिए, एंगर के लिए टू मच, बहुत सारे वर्सेस हैं भगवत गीता में। सो नाउ ये एक इकलौता इमेज काफी है, ये कोट काफी है लॉर्ड बुद्धा का। This is anger. What is anger? Anger is like holding on to the anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. If you understand this, you can control your anger. You can drop your anger. No need to control your anger. You can drop your anger. This is a wonderful quote. Now, here there are 3 types of anger. वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो समझेंगे तो फिर हम वर्क कर सकते हैं। The one is intense type, second is medium type, third is the mild type. Intense type क्या होता है? In this case, our thoughts, words and actions get affected. Okay. Medium type, in this case, though anger is there, we are able to control it at the verbal and physical level. ये कंट्रोल करा जा सकता है, ये कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पे वो फाइटिंग, मार पिटाई हो जाती है। The mild type, third one is, here there is no anger. It is just a show of anger. जो माँ बच्ची के लिए दिखाती है, वो जरूरी भी होता है, ठीक है। Now, in the type 1, that is the intense anger, we are controlled by anger. So we are gone. No use, okay. In the type 3, we control the anger. In type 2, it is sometimes, okay. So if we are controlling the anger, then that is okay, okay. Is anger useful in any situation? अब इसका अपोजिट साइड भी तो देखना पड़ेगा। If is anger useful in any situation? Yes. There are many situations where a show of anger can solve the problem quickly. For lazy and tamasic people in society, the language of anger is the only language they understand. यहाँ पे लेजी और इस तामसिक बात पे आती है। लॉर्ड रामा showed anger against सुग्रीव। If you remember, जब सुग्रीव को राजपाट दे दिया था तो रेन्स स्टार्ट हो गई थी, एंड वर्षा ऋतु जो होती है 4 मंथ्स रहती है, तो 4 मंथ्स के लिए लॉर्ड राम ने भी अपना काम छोड़ दिया था। सो दिस इज एडवाइजेबल, मिनिमम जर्नीज हमको करनी चाहिए, एंड ऑल वी नो व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड जापान, इंडिया में भी कितना हो रहा है, तो वी शुड नो अबाउट इट। तो एनीवेज, वो 4 महीने निकल गए, उसके बाद में भी सुग्रीव कुछ ढूंढने का काम नहीं कर रहा था। तो फिर राम को गुस्सा आया और उन्होंने एंगर शो किया। मतलब भगवान को भी शो करना पड़ता है। सो जब जरूरी हो, इट इज ओके। और दुर्योधन एंड शिशुपाल, ऐसे लोग तो एंगर और वॉर की ही लैंग्वेज समझते हैं, तो उनके लिए वैसा यूज करना पड़ता है। नाउ एंगर के लिए पहले भी हमने ये वर्सेस डिस्कस करी थी चैप्टर 2 में, 62 एंड 63। ये 2 वर्स में बहुत क्लियरली बताया है कि एंगर आता कैसे है, ये मतलब शुरुआत कैसे होती है, और इसका एंड रिजल्ट कितना बुरा होता है। देयर आर मेनी वर्सेस, और भी काफी, बट इसको देख लेते हैं। द मैन dwelling on sense objects develops attachment for them. From attachment it springs up desires, and from the desires, those which are unfulfilled, ensues anger. उससे anger आता है। Then from anger arises delusion, and from delusion, confusion of memory, and from confusion of memory, loss of reasoning, and from loss of reasoning, one goes to complete ruin.
This is given in Bhagavad Gita, chapter 2, verse 62 and 63. Let us understand this ladder. ये हमें समझना चाहिए. Step by step descent of noble man down the ladder of temptation into doom. सबसे पहले कोई भी चीज का विजुअलाइजेशन होता है सेंसरी हैप्पीनेस का. जैसे किसी को बाइक का है, किसी को कार का है, कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट, कोई मोबाइल फोन का है, इसका है. तो पहले आपको विजुअलाइजेशन होता है. देन द अटैचमेंट टू द फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन. उस पर्टिकुलर सेंस ऑब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है. डे नाइट यू आर वर्किंग ऑन इट कि ये मुझे मिल जाए कोई भी चीज. द एक्टिव डिजायर ऑफ रिक्वायरमेंट. अब आपको यह आने लगा. पहले अटैचमेंट हुआ उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन से, उसके बाद में उसको परचेस करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए एक्टिव डिजायर हुई. दिस कैन बी फॉर थिंग, प्लेस और मे बी बीइंग. किसी के लिए भी हो सकता है. देन क्राफ्टी क्रेविंग्स बढ़ रही है. मतलब ये डिजायर से ही सारा खेल शुरू होता है. एंड दिस इज आपका पीस, एनिमी ऑफ पीस. आपका पीस ऑफ माइंड चला गया. सारे टाइम उसी के बारे में सोच रहे हो जब तक वो चीज मिल ना जाए. अगर मिल गई तो ठीक, बट इफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स तो एंगर पॉप्स. यहां से एंगर की शुरुआत होती है. एक बार एंगर आ गया, देन डिल्यूजन, स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस. अब आपको धुआं धुआं अंधेरा, डिल्यूजन, कुछ दिखता नहीं है, करेक्ट नहीं दिखता. एंड देन इट लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ हिज इनर रियल नेचर, कंफ्यूजन. हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअली में क्या है, आत्मा है, ये सब है. वो तो कुछ ही नहीं, बस एंगर ही ओवर पावर हो जाता है. एंड देन डीके, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति का पूरा नाश हो जाता है. लॉस ऑफ रीजनिंग. ठीक है. गुस्से में ही तो सारे गलत काम होते, राइट. कोई किसी का मर्डर करता है, ये सब करता है, किस में होता है? गुस्से में ही. और भी बहुत कुछ गलत काम गुस्से में ही होते हैं. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ की तो बात ही भूल जाओ. तो ये सबको बढ़ाना है तो पहले एंगर पे कंट्रोल करना होगा. और अगर कोई ऐसे सिचुएशन में हो, एंगर नहीं जा रहा है, तो कीप टेस्टिंग योरसेल्फ विद द FIR टेस्ट. F is frequency, how frequent you get disturbed किसी भी चीज से. Intensity, with what intensity you get disturbed. And recovery, how quickly you recover from disturbed mindset. Keep checking yourself, keep doing the FIR test. तो आप ये सारे वर्चूज को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं. ये और एक अच्छा कोट था. इफ यू आर हम्बल, नथिंग विल टच यू, नाइदर प्रेज नॉर डिस्ग्रेस, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर. ये बहुत ही अच्छा कोट है मदर टेरेसा का. एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ चैप्टर 12. फिर कभी लेंगे. बट चैप्टर 12 भगवद गीता इज अ वंडरफुल. सबसे छोटा चैप्टर लेकिन बहुत कुछ कहता है. Now, this is my favorite quote. Now, I want you to, next two जो है वो थोड़ी quiz type है. And I want you all to unmute yourself and let me know कि जो आज 8 virtues हमने पढ़ी हैं, उनमें से this particular quote represent which virtue? Tell me. Work hard in silence, let your success be your noise. This is my favorite quote. Anyone from you? Mom, no show off. Correct. No show. Correct. This was the second one. Adambitvam. No show off. Wonderful. Full marks. Good. Now we have one more. This is again my favorite. Never believe you are above or below anyone. Remain forever humble. Which virtue? Arjavam, Arjavam is मन वाले वो तो वन वन ट्यून, मतलब अंदर ओके ओके बाहर सॉरी से सॉरी सॉरी सेम. ओके 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 Amanit- यस Amanitvam. Amanitvam. That was अमानित्वम the, यस yeah, यस के Amanitvam अभिमान is का the भाव first one. श्रेष्ठता So के भाव egolessness leads to humble. Very good. Good marks. अच्छा सीखा है. ठीक है. Thank you. So I was thinking of meditation, but I think this is all okay, fine. I hope you all have liked it. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. Then we close. Today I have completed it in time.
exactly 1 hour. Beautiful, ma'am. It was very good. Thank you. Thank you. Very So beautifully we you have all these so terms. so we need to give her appreciation, right? Genuine appreciation. Yes. ये important है, बहुत ही beautiful, शकुंतला. Everything that you explained और भगवत गीता से तुमने जो इंस्पायर करके इतना सुंदर बताया, I think it has to be actually revised again and again. जो भी शकुंतला ने बताया है, ये एक बार सुनने से तो कुछ होने वाला है नहीं. सो ये रिवाइज करना जरूरी है. Yes, ma'am. Yes. These 8 virtues अपने मन में बिठा के रखना है. एंड लाइक शकुंतला ने बहुत सुंदर कहा कि अगर कोई भी हफ्ते का एक दिन लीजिए और ऑब्जर्व करिए कि वेदर यू आर फॉलोइंग दिस वर्च्यूज और नॉट. जो शकुंतला ने कहा कि उसने भी ऑब्जर्व किया, है ना, तब पता चला कि यार झूठ बोलना, यू नो दिन में 5-6 बार हम ऐसे ही ऐवी झूठ बोलते हैं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज नहीं, की. exactly. बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट वी टेंड टू जस्ट आइदर वी फील कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा तो हम झूठ बोल लेते हैं. और अमूमन मैंने देखा है, माय हस्बैंड, ओके, इफ ही इज, अभी तो ही डजंट बिकॉज देयर इज नो सिचुएशन लाइक दैट, पर जब वो शूटिंग से कॉल आता था, ही से आई एम जस्ट रीचिंग. अरे मैंने कहा कब, तुम तो अभी घर पे हो. है ना? तो ये इतना कॉमन है लोगों का. गाड़ी में आप बैठे हुए हैं एंड यू आर सेइंग आई एम जस्ट रीचिंग. अरे ये इतना कॉमन है, ये वाइट लाइज जिसको बोलते हैं, कि जरूरत ही नहीं है. एंड लाइक शकुंतला ने बहुत अच्छा कहा, बी क्वाइट, है ना, साइलेंट रहो. बोलने की क्या जरूरत है अगर आपको नहीं, डोंट से एनीथिंग, बी क्वाइट. बट चुप रहना तो हमारे नसीब में है नहीं ना. We are all the time wanting to explain, over explain, talk. So that, and this thing that you said about ahimsa, Yeah. non-violence, बहुत ब्यूटीफुल था. जैसे मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक साधु और सांप की कहानी, पता है आप लोगों को? नहीं. साधु और सांप की स्टोरी. तो एक देर वाज अ साधु, और वहां पे एक वेनमस मतलब पॉइजनस स्नेक था जहां पे वो साधु बैठता था. तो साधु ने उस सांप को कहा कि तुम ना बाइट करना छोड़ दो, स्टॉप बाइटिंग पीपल, बिकॉज पॉइजन तेरा लोगों के अंदर जाता है, लोग मर जाते हैं. तो तुम बाइटिंग छोड़ दो, देन यू विल बी अहिंसा, मतलब यू विल फॉलो अहिंसा. अब सांप को सिखाया जा रहा है अहिंसा, सोचो. ठीक है. अब साधु महाराज जो है वो साधु स्नेक को बता दिया कि देखो तुम बाइट करना छोड़ दो. तो स्नेक को भी लगा कि ठीक है, अब साधु महात्मा इतना मुझे कह रहे हैं तो मैं आई विल स्टॉप बाइटिंग एनीबॉडी. 1 साल बाद जब साधु वापस उस गांव में आया तो उसने देखा कि सांप जो है उसको, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे वुंड्स थे. तो साधु ने कहा कि क्या, व्हाट इज हैपन टू यू, तेरे बॉडी के ऊपर इतने सारे वुंड्स थे, क्या आपने तो कहा ना कि बाइट करना छोड़ दो. तो मैंने बाइट करना छोड़ दिया तो आसपास के बच्चे आके मुझे पत्थर मारते थे. तो तुमने जो कहा कि you have to be non-violent, but you have to also learn to protect yourself. तो ये जो तुमने ये कहानी मुझे तब याद आई कि सांप को प्रोटेक्ट तो करना सीखना पड़ेगा ना. he does not have to bite, but वैसे ऐसे करके फन तो डेफिनेटली दिखा सकता है, बाइट करने की जरूरत नहीं है. तो ये बहुत सुंदर शकुंतला आपने बताया कि actually it's very important to understand what is non-violence. Yes. Non-violence doesn't mean कि आप कुछ ना ही करो, है ना. लोग आएंगे आपको थप्पड़ मार के चले जाएंगे, that is not considered to be और- non-violent behavior. फॉर एग्जाम्पल जो लेडीज हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करेक्ट, यूज करती हैं, करती है. हाँ. तो दे शुड, मतलब कुछ भी
ऐसा हो, दे शुड बिकम झांसी की रानी एट दैट टाइम. नो नीड, शो योर एंगर. बम्बई में जो लोग रहते हैं, जो ट्रेन में सफर करते हैं, मैं एक ही बार आई वॉज एक्चुअली वायलेंट, जो मुझे याद है, ठीक है। हाँ, हाँ. ट्रेन में सफर करने वाले इन बॉम्बे के लोगों को वायलेंट बनना पड़ेगा। तो मैं आई यूज टू कैच द 447 ट्रेन फ्रॉम चर्च गेट टू एक्चुअली अंधेरी। तो एक बार मेरी जिंदगी में मैंने 41 विरार फास्ट पकड़ी। जो बॉम्बे के हमारे लोग हैं वो जानते हैं विरार फास्ट में क्या होता है। तो मैंने विरार फास्ट पकड़ी। अब बारिश का मौसम था, तो छाते थे सबके पास, ठीक है। राइट. तो मैंने विरार फास्ट पकड़ी, मैं अंदर गई और अंधेरी स्टेशन पे विरार फास्ट रुकेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। तो लेडीज लेडीज कंपार्टमेंट, हाँ। तो हाँ. लेडीज ने कहा आपने विरार फास्ट पकड़ी ही क्यों, जब आपके पास अंधेरी स्लो 47 को है, तो आपने विरार फास्ट क्यों पकड़ी। तो मैंने कहा कि मतलब आपके बाप की ट्रेन है, मतलब गवर्नमेंट की ट्रेन है, मैं विरार फास्ट में आ सकती हूँ। नहीं, हाँ. आपको विरार फास्ट में नहीं आना चाहिए, बिकॉज विरार की कम ट्रेन्स होती है और अंधेरी पे बहुत सारी ट्रेन्स रुकती है, मतलब उनका लॉजिक था, ठीक है। तो इसीलिए विरार फास्ट में आपको नहीं आना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया, मेरा अंधेरी स्टेशन आया, दे डिड नॉट अलाउ मी टू गेट डाउन। उन्होंने ऐसे मतलब फोर्ट्रेस बना के कि अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। राज, अब राजनीति, हाँ, अब कूटनीति. कूटनीति, अब तुम नेक्स्ट स्टेशन पे उतरोगी और तुम्हें टीसी पकड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पास अंधेरी तक का ही था, तो ओ. तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोड़ी ली और मैंने ऐसे 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 जो मारी है, ओके, और मैं निकल गई अंधेरी स्टेशन पे। वरना ये लोग मुझे डेफिनेटली वो छाते से मार डालते उस दिन। they would have killed me, because उन्होंने छाता ऐसे लेके मेरे पेट में, they were pushing it कि तुमने विरार फास्ट क्यों पकड़ी। तो जैसे शकुंतला ने कहा कि कभी कभी टू प्रिजर्व योर सेल्फ आपको ये करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा एक अनुभव है जिंदगी का। उसके बाद मैंने कभी विरार फास्ट ट्रेन नहीं पकड़ी थी। तो ये नहीं, ये होता है, मैंने लेडीज अगेंस्ट लेडीज। भाई जेंट्स तो चलो आपको ट्रेन में बस में पिंच कर सकते हैं, बट लेडीज, माय डियर, लेडीज आर लेडीज वर्स एनिमी, वो मैंने उस दिन देख लिया। तो कई बार हमें अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए करना ही पड़ेगा. करना पड़ेगा। तो ये अहिंसा का तुमने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। और लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे, जैसे मैंने शेयर किया अहिंसा का। मैम एक बार हुआ था मेरे साथ, हाँ। मैं मेरी शादी हुई थी, और मेरा बेटा उस समय, मेरी शादी होते ही मेरा पहला बेटा हो गया था। और मैं शादी में गई थी अपने भाई के, मेरा भाई है कजन, उसकी शादी में गई थी। तो उस समय वहां पे हमको ट्रेन पकड़नी थी बक्सर से, और हाँ। बक्सर से हमें कलकत्ता आना था। तो बक्सर जाने वाली ट्रेन हाँ। कैंसिल हो गई। हाँ। और फिर हम, मतलब हमारे सारे सब लोगों को, हम लोगों को स्टेशन पे सोना पड़ा। फिर हम लोग सोचे किसी तरह यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम लोग पटना जाते हैं, वो जो लोकल ट्रेन है, और उसके बाद हम वहां से फ्लाइट से या वहां से ट्रेन लेकर के जाएंगे। हाँ। तो मेरा बेटा उस समय 4.5 महीने का ही था। हाँ। और उसको मैंने हगीज पहना करके, और वो लोकल ट्रेन भी बहुत भरी हुई थी, बहुत बुरी तरीके से। और हाँ। मुझे मेरे भैया ने बोला कि तुम ऊपर बैठ जाओ, और हर तरह के लोग हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ। और मेरे हस्बैंड किसी तरह दूसरी ट्रेन में चढ़े, मैं इसमें चढ़ी। और उसके बाद वो पॉटी कर रहा है बेटा, उसका हगीज उठा के मेरे भैया बाहर फेंक रहे हैं खिड़की से। ऐसा था कि मतलब उतर भी नहीं सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं, इतना भरा हुआ। फिर जब हम लोग उतरने लगे, मैं एकदम परेशान हो गई, तो पीछे से किसी ने मुझे पिंच कर दिया, छेड़ने के हिसाब से। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ मैम, मैंने घुस करके उसको इतनी जोर का चाटा मारा कि पूरे ट्रेन में आवाज गूंज गई। क्या फिर तो बात है। वो, उसको इतना गुस्सा आया, बोला इसको चक्कू मार दो। मैंने तो उसको कुछ किया नहीं, इसको चक्कू मारो अभी। वो बिहार था, पटना था। तो मेरे भैया एकदम घबरा गए, नहीं नहीं बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं रोने लगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई, ये मुझे छेड़ रहा था इसलिए मैंने, मेरा हाथ चल गया या जो भी मैम, मतलब। लेकिन मैम आपका जो सुना, उसको तो सुन के मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ कि हाउ कैन लेडीज डू दिस टू समवन लाइक फॉर हाँ, नथिंग।
वो तो अगर आप बॉम्बे में रहेंगे तब पता और ट्रेन में जाएंगे तब पता चलेगा कि लेडीज कंपार्टमेंट में होता क्या है। मैम मैंने मच्छीमार। बहुत बहुत फाइट्स देखी है। हाँ, रत्ना ने देखी है। लेडीज में फाइट्स होती है, अब जेंट्स में चले जाओ तो कुछ नहीं होगा। दे पुल योर हेयर। ये तो अच्छा हो मेरे Oh my साथ ऐसा God. नहीं हुआ, बट उन्होंने छाते से जो मुझे पेट में खोचा, बैक में खोचा, फिर मैंने कहा भैया मैं तो आई डाई है ना, तो फिर मैंने भी अपनी ताकत लगाई। मुझे पता नहीं था इतनी ताकत है मेरे पास, बट मैंने ताकत लगा के जो मैं निकली हूँ बाहर उस स्टेशन पे। तो ये होता है, ये होता है बम्बई ट्रेन्स My में। God. बॉम्बे ट्रेन्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप लेडीज लेडी मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई विरार फास्ट में नहीं जाते। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि यार तू विरार फास्ट में गई ही क्यों। तो मैंने कहा मतलब मुझे ध्यान ही इसमें नहीं क्या था हो उस गया? बात का। हाँ, इसमें नहीं, क्या फर्क पड़ गया? अगर आप एक नहीं, ट्रेन की बजाय दूसरे में चढ़ गए तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे प्रॉब्लम ये यहाँ। होती है जो रेगुलर जाने वाले होते हैं ना, उनको लगता है वो उनकी ही ट्रेन है। हाँ, उन्हीं की ओह, ट्रेन। वो बॉस उन्हीं करते हैं कि ये हमारा रास्ता है, हम यहाँ से रोज जाते हैं। मतलब तुम विरार में, क्योंकि देखो विरार की जो ट्रेन है वो कम है, और जो अंधेरी है इट्स अ मिड स्टेशन, तो वहां पे फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन रुकती है। तो उनका ये था कि जब आपके पास ऑप्शन है और हमारे पास कम ऑप्शन है, तो आप क्यों इस ट्रेन में आई। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए पर विरार वाले जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो अपनी विरार ट्रेन को अपनी बाप की प्रॉपर्टी हाँ, समझते हैं, ऐसा है। इसके लिए वो दे कैन बी सो, दे कैन बी मतलब वायलेंट, यस। हिंसक भी हो सकते हैं। या माय हिंसक हो गॉड। सकते। So, तो ये अगर कोई ma'am, बॉम्बे वाला सुनेगा उसको पता चलेगा कि यस मैम यू आर तो राइट। रत्ना रत्ना को पता है। ये रत्ना तो को ma'am, बताना पता। चाहिए ना। I have a question, ma'am. यहाँ पे और कौन है पता Um, नहीं। हाँ। कुछ I have a question. When we have a cockroach or a snake in our home, right? Killing them for our safety and danger, is it called non-violence or is it against the spiritual practice? that is okay. That is okay. You are a householder. For you, that is okay. There are different rules for different people. Thank you. यू नो Because एक nobody see my hand. हाँ, या तो ये है कि शकुंतला जी, मेरे आपसे एक प्रश्न था कि जब हम किसी कोई देखता है किसी एनिमल को, वो पेस्ट के रूप में देखता है, कोई एनिमल को एनिमल के रूप में। जैसे कि अगर आपके घर में छिपकली हो, तो कुछ को एक एवर्जन होती है, घृणा होती है, और वो जाता है, वो उसको अटैक करेगा या उस पर चीज फेंकेगा। तो ये है कि तो उस समय पर, क्योंकि हम लोग लाइक्स और डिसलाइक्स पर चल रहे हैं, तो क्या आप बोलेंगी कि वो इम्प्योर माइंड की वजह से हो रहा है? एक्चुअली इसके लिए एक बार, आप पता नहीं उस क्लास में थे कि नहीं, स्वामी जी ने बहुत क्लियरली इसका आंसर दिया था कि ये जो 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 छिपकली से आवर्जन है हमको, ये क्यों है कि किसी पिछले जीवन में हम कोई इंसेक्ट रहे थे और कभी उस छिपकली ने हमको खाया था। सो हम तो फिर उसके, भी इम्प्योर माइंड है, क्योंकि रिवेंज की भावना आ रही है। बिल्कुल। और छिपकली आपको वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इफ यू सी। और सिंपली हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल लिटरली हिटिंग देम, मार और देते। जैसे कि इट्स मधुमक्खी वगैरह जो एब्सोल्युटली होती है, वायलेंस। मधुमक्खी वगैरह होती है, लोग उसको मार देते हैं, और जो कि हमें पता है कि इकोलॉजी में इस तरह से है कि मधुमक्खी की वजह से ही इंसान जिंदा है। तो और पर तभी तभी मधु भी हम लोग। बट इफ यू टॉक अबाउट मधुमक्खी, मधुमक्खी जब अटैक करती है ना तो इंसान को मार भी देती है, तो उससे तो बच के भी रहना चाहिए। नहीं नहीं, पर यह है कि इकोलॉजी में हमें पता है कि मधुमक्खी की वैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और यह है कि मधुमक्खी की वजह से ही इंसान जिंदा है। तो यह है कि क्या क्या उसे मारना उचित है? राहुल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इस तरह का रिपल्शन ऑफ और ये जो चीजें होती है इज बिकॉज ऑफ फियर। हमारे अंदर डर है जिस वजह से हम ये सब चीजें करते हैं ना।
कि अगर छिपकली हमारे घर में घूम रही है, कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, कहीं हम जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर न गिर जाए। सो इट इज फियर दैट मेक्स अस डू ऑल दीज थिंग्स। हमें भी पता है कि द लिजर्ड इज नॉट गोइंग टू हार्म अस इन एनी वे, बट हमारे अंदर कुछ फियर है जिस वजह से हम ये सब चीजें करते। इवन फॉर दैट मैटर बीज, बीज जब हमारे घर में आती है, हम अगर खिड़कियां खोल देंगे तो बी अपने आप बाहर चली जाए। अगर विद द पेपर इफ यू जस्ट डू लाइक दिस, द बीज विल गो आउट। बट तो मैम फियर, तो फियर मैम की fear वजह is से, fear is the thing which has to be tackled, फियर no? इज द No, की। because that day हमारे, we were having this conversation on this on the dogs, and यस, that's what I was saying, that it's basically the fear, because if you got the fear and the dogs smell the fear and they automatically will करेक्ट। attack. अगर आप भागेंगे कुत्ता आपके पीछे जरूर भागेगा। अगर आप खड़े रहेंगे तो कुत्ता आपको बाइट कभी नहीं करेगा, कभी नहीं नेवर करेगा। एवर, बिकॉज द एनिमल इज फियरफुल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर फियरफुल ऑफ एनिमल्स। So तो ma'am, ये, there was this, या, there was this dog which was very fierce, and they would call it vicious, and like it was in within the gate, and हम्म, accidentally the gate opened, and I was हम्म, just taking a walk, stroll, and the dog came हम्म, viciously, and हम्म, I mean, I just stood there and I just told him, just put my finger, said no, and हम्म, the dog came, and quietly he just करेक्ट, became quiet, and but he went around smelling. या, So he basically was trying to pick up the signals. Am I fearful? करेक्ट। इट इज ऑल फियर बेस्ड। ये जो हम डर की वजह से हम कई चीजें करते हैं। सो यू विल हैव टू सी वेदर यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ फियर और genuinely the animal is vicious, like a Mm-hmm. snake। नो, अभी कहा जाता है कि even if you stand still and there is a snake, the snake will go away। बट Mm-hmm. हमारे अंदर इतना फियर है कि हमें बाइट कर लेगा। यू नो, द अजम्पशन that Mm-hmm. an animal is dangerous Mm-hmm. actually makes us do what we do। हाँ, तो और मैं, मैम एक और मेरा क्वेश्चन था शकुंतला जी, कि हम लोगों ने जैसे आपने पक्ष भावना की बात की थी, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसको उनको फ्रीडम फाइटर्स के तरह हम लोग लेते थे, बट अगर आप ब्रिटिशर से पूछें तो वो उनको टेररिस्ट बोलते बोलते उस टाइम पर। तो क्या पक्ष तो भावना ही है ब्रिटिशर्स क्योंकि को आप क्या बोलोगे? ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, नहीं तो यह है कि हम लोग वो जो खुद, हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर, जो कि दूसरा दूसरे पक्ष पक्ष से देख रहा है, तो क्या अगर हम लोग उनके पक्ष से देखते, कई लोग जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, तो वो उस उन इनको सही नजर से नहीं देख रहे थे। तो आपको यह है कि यहाँ, हाँ, आपको तो ये यहाँ पे हाँ। अपनी विवेक बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी पहले। यू नीड टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हम्म। ठीक है, किसकी साइड से देखना है वो नहीं। ओके, नाउ ब्रिटिशर्स तो खुद ही गलत थे, हाँ जी। तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का फुल प्रोटेक्ट राइट। करना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, तो what, देखिए, अब जैसे मैं आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी पॉलिटिकल, तो जैसे कि मैंने जो जितना पढ़ा हुआ है, तो जो पैलेस्टीन का भी प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिशर्स के ही द्वारा की हुई है, और वहां पर जो जो लोग उसके साथ उसको वापस अपना रिक्लेम करने चाह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड टेस्टामेंट, जो हम लोग को पता नहीं है कि क्या है, जो अभी की स्थिति है, कि वो अपने वो फ्रीडम फाइटर्स की तरफ चल रहे हैं, वो हमारे जैसे बोलते हैं कि जैसे जैसे भारतवासी हैं, पर उनको उनको लोग बड़े दूसरे एक तरह से देख रहे हैं, जबकि के हम लोग के अगर पक्ष में देखें तो फ्रीडम फाइटर्स थे, पर राहुल, उन राहुल, शकुंतला ने एक चीज की थी, बोली थी अभी, कि द्वापर युग में धर्म युद्ध था। सो इज दिस धर्म युद्ध ब्रिटिश और इंडिया? अगर ब्रिटिश डेफिनेटली सोचे इसके बारे में, तो वो हम्म, धर्म युद्ध नहीं है। दे हम्म, आर इन द रॉन्ग। हम्म, किसी भी क्षेत्र के ऊपर आपका आपका जाके आक्रमण करना हम्म, इज नॉट कंसिडर्ड धर्म युद्ध। नो, वो तो युद्ध ही नहीं है। धर्म ही नहीं है तो कहां से युद्ध होगा? है हम्म। ना? सो आई थिंक द वर्ड धर्म युद्ध जो शकुंतला ने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, और ये है कि जब जब भी हम किसी के पक्ष में देखेंगे,
तो automatically, we will tend to become, we attach ourselves, or to that particular. राहुल, ब्रिटिश इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, they were not on the side of the British, they were on the side of trying to sustain themselves. उनका अपना एक लाइवलीहुड था, करेक्ट, जिसके लिए वो ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे. इट्स लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी विच इज करप्ट, but you continue working because you have a salary at the end of the month. No, आपके but ma'am, अपनी needs there है. were all there were also people who were not, who were also fighting. They would say that we don't want to be part of the system, which is actually crushing the other Indians. Now, Rahul, we really don't know who is saying what. हाँ 70 साल हो गए, 100 साल पहले, 200 साल पहले किस तरह की माइंडसेट थी. Whatever we are reading, who has written it, how they have analyzed whatever they've analyzed. But the truth is that the Britishers came to India. as colonials. हाँ They are the ones that came. उन्होंने आक्रमण किया, वो लोग आए, उन्होंने हमारे true. resources को ले गए. So I don't think we are wrong in any way to get our land back. As simple as that. True. तो ये I think धर्म युद्ध, इसको डीपली समझना बहुत I think important है. Then the right and wrong, the siding will change. Because what is right is always right. So, and ma'am, third thing was that you had said that like about women fighting in the trains and all that, so ऐसे बात नहीं है कि हमारे तो मेट्रो में तो men also beat each other up. In fact, there was this particular case where there was this army man, and a civilian, and the army man had hit the guy so terribly badly that उसको दांत ही तोड़ दिए थे. और वो सिविलियन था, उसके पास पता नहीं कैसे चाकू था, and he had got this blade and he was rushing to attack this army man. So I pulled both of them. I mean, I literally sat and I don't know what happened. So I have this terrible suddenly brave bravado that I think is coming from my mother. So I literally pulled them literally held both of them, pulling them apart, and they were literally going at each other. Then I told the person, I said that कि वो बोले कि नहीं इसने ये मेरे को ऑब्जेक्ट he was not allowing me to go this army man. तो ऐसे कि मतलब it's okay, I mean, but you don't have to break his dant for that. So then like I mean I said ना आप क्या करें, ये तो army man है. Then I said like then I realized that he was not in his uniform. So I said that fine, you may be an army man, but without your uniform you're a civilian. Because you're not in this thing, so you cannot show your this army pana in your civilian clothes. And this guy, I said you also don't have anything of right of carrying chaku and all that. नहीं So तो I said शकुंतला ने, आई थिंक शकुंतला ने बोला ना विवेक बुद्धि. तो जब विवेक बुद्धि नहीं है तो इंसान loses all sense of sanity, तभी तो violence होता है. Ma'am, the only way out was like they've got that metro police guys. I said, well, now you both have to go, and now metro police will take over. अब आपका भी नहीं चलेगा, इनका भी नहीं चलेगा. You want to say something, Rajinder? हाँ. क्वेश्चन है मैम. हम क्या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कई बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या कुछ सपोज जैसे ततैया मधुमक्खियां होती हैं, यदि आपके अंदर फियर होता है तो उसको कैच कर लेती हैं और वो आपको ही काटती हैं. यदि आपके अंदर फियर है, यदि मेरे अंदर फियर है और यदि मैं फियरलेस हूँ, मेरे अंदर जरा सा फियर नहीं है, तो आसपास घूमती रहेंगी और कुछ नहीं होगा. करेक्ट, ऐसा एब्सोल्युटली होता है ना? राइट. होता ही है. मैं आपको बताऊं मेरा हमारे फियर को एग्जाम्पल. सेंस कर लेती है वो. जी हाँ, मुझे मच्छर हमेशा काटेगा. जी. अगर अच्छा. 5 लोग बैठे हैं तो जी. किसी और को नहीं काटेगा, पर मुझे जरूर काटेगा. Because I have a belief that mosquitoes bite me. It is not only fear, okay? The belief that Bees also mosquito. attract them. हाँ, नहीं, कई लोग कहते हैं ना कि आपका खून बड़ा मीठा है, इसलिए मच्छर आपके पास आते हैं. ओके, अगर मैंने बिलीव कर लिया कि मेरा खून मीठा है, तो मच्छर मेरे पास जरूर आएंगे. Sometimes your own belief attracts situations towards you. Unconsciously.
या अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं है कि मैं बोल अनकॉन्शियसली। रही हूँ मच्छर आ जा मेरे पास, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो मेरे पास जरूर आएंगे। दैट इज वाई वेन एवर आई गो टू अ गार्डन और समथिंग, मैं हमेशा सॉक्स पहन के जाऊंगी, बिकॉज मुझे अब ये बिलीफ, मुझे आई हैव टू ब्रेक दिस बिलीफ, करेक्ट? ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये है कि क्या जैसे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, हाँ, तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस लेवल पे तो हो सकता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका एक ही कुछ सिस्टम हो और वहां पे वो कनेक्टेड हो और वहां से सीधा कम्युनिकेशन हो जाता हो सकता है कलेक्टिव हो। कलेक्टिव अनकॉन्शियस वर्क्स मोर एट अ ग्रुप लेवल, है ना, सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करेगा, एक ग्रुप की तरह काम करता है, लाइक नेशंस, जो नेशंस होते हैं वहां पे भी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस वर्क्स, लेट अस से इजराइल, पैलेस्टीन, जैसे राहुल ने बताया, नाउ दैट एंटायर नेशन हैज अ सर्टेन कॉन्शियसनेस। एक आदमी की कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगी वॉर में, है ना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है, नहीं नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ, एट द मैं बात मास कर रहा हूँ जैसे इवेंट लेवल। मैं जो बात कर रहा हूँ, सपोज एक ततैया है, एक जैसे कि मेरे एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे मंकीज थे, मैं पार्क में वॉक कर रहा था मैं, और उस साइड से भी, उस साइड से भी, उस साइड से भी 50-60 मंकीज थे, उन्होंने मुझे हाँ, सराउंड कर लिया। और हाँ, मैं अकेला था पार्क के अंदर, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो सबसे पहले मैंने सिद्धांत किया कि फियरलेस होना है, हम्म, बिल्कुल भी भीतर से जरा सा भी डिस्टरबेंस नहीं है। और हम्म, मैंने फिर वहां से कुछ एक रॉक, एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था, उसे मैंने हाथ में लिया, और मैं बहुत धीरे 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 बिल्कुल फियरलेस स्टेट में कोशिश कर रहा था, फियर आ रहा था लेकिन फियरलेस स्टेट में धीरे धीरे पार्क के रास्ते से निकला। तो बंदर मेरे आसपास में घूम रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं किया, मैं निकल गया वहां से। तो मतलब करेक्ट, मेरे क्या, हाँ, तो फियरलेस यदि आप हैं या तो कुछ नहीं, शायद वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, और फियर है तो शायद वो आपकी तरफ आने लगे। तो मैं, डेफिनेटली। हाँ, इसी सेंस में कह रहा था कि शायद अनकॉन्शियसली हम शायद कलेक्टिव माइंड सबका शायद एक ही हो, मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। या मतलब माइंड। so so I mean, consciousness works first at the individual level जी and जी then जी। at the collective level. So individually मैं पार्क में हूं अकेली, तो मुझे तो अपनी ही फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, इसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कुछ काम नहीं है, बट मंकी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा नहीं है, बट मंकीज का अनकॉन्शियस कलेक्टिव माइंड जरूर है। सो दे मस्ट हैव सेंड सिग्नल्स टू एवरीबडी के इस बंदे को छोड़ दो भैया, हाँ, ये अपना फियरलेस है, इसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है द मंकीज टुगेदर 60 ऑफ देम विल बी हैविंग एन अनकॉन्शियस माइंड। So these are very interesting things, है ना, how जी जी। animals get attracted to us, कई लोग को पेट्स पसंद है। अब आई डोंट हैव अ पेट एंड नॉर विल आई एवर कीप अ पेट, ओके, बट ऐसा नहीं कि मुझे एवर्जन है कुत्ते से, बिल्ली से, ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास कुत्ता होगा तो आई गो टू देयर हाउस ऑल्सो, नो इश्यू, बट आई विल नॉट कीप अ पेट इन माई हाउस। सो इट्स नॉट कि आपका एक प्रेफरेंस भी होता है। मेरे जी हिसाब जी से जी। एनिमल्स को एक छोटे से घर में रखने का मतलब नहीं है। हाँ, मेरे पास अगर महल है तो मैं कुत्ता रखूंगी, बिकॉज माई डॉग कैन कैन रन अराउंड, है ना, कुत्ते की भी अपनी एक नीड्स होती है, राइट? फ्रीडम, फ्रीडम, एक उसको छोटे से फ्रीडम चाहिए। फ्लैट में, हाँ, एक छोटे से फ्लैट में क्यों हम कुत्ता कुत्ता रखे बेचारे को? तो वापस जी मांडू में जाना पड़ेगा। वापस मांडू जाना पड़ेगा। So what I'm saying is that we have to understand who should keep a pet and who should not keep a pet also, मेरे हिसाब से। जिनके बड़े बंगले हैं, गार्डन है, वहां आप रखो ना, 3-4 कुत्ते रखो, नो प्रॉब्लम। बट आप छोटे से घर में रह रहे हो, 5-6 लोग रह रहे हैं, वहां पे एक कुत्ता इज एक्चुअली, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अ अच्छा डॉग। नहीं। कुत्ते के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। जी 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 जी। तो इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि मुझे कुत्ता पसंद है तो मैं कुत्ता रखूंगी। अरे बट भाई, तेरा घर तो देख, नहीं है कुत्ते के लिए वो अच्छा घर नहीं है। जरूर। तो मैं तो ये मानती हूँ, यू कीप अ पेट, यू कीप अ गोल्ड फिश इफ यू वांट, छोटे से घर में। पर फिर मछली को क्यों आप छोटे से गोल्ड बोल में रखे ना, उसको बेचारे को रिवर में डालो, है ना। तो मैं तो आई एम नॉट वेरी मच इनटू दिस कीपिंग पेट्स एट होम। हाँ, घर अगर सही है तो आप पेट रखो। मैं इवन प्लांट्स के लिए मैं तो कहती हूँ,
अपने घर में आप क्यों प्लांट्स रखते हो? जरूरत है? अब बाहर देखो ना, पेड़ पौधे झाड़ सब कुछ है. लुक आउटसाइड द विंडो and you'll see all the trees. I'll end it with a small incident of my nephew. Okay. He lives in the US. My sister lives in Canada, sorry. And वो भी छोटा था तभी. तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो लेट्स गो टू द नर्सरी एंड वील बाय सम प्लांट्स. ओके. तो वो दोनों नर्सरी गए और छोटे छोटे पॉट्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे थे. सो माय सिस्टर सेड आई टेक दिस, आई टेक दिस. सो माय नेव्यू वाज वाचिंग हर. ओके. एंड शी सेड, मम्मा, व्हाई आर यू बाइंग these pots? So she said, no, I love the plants. I'm going to keep it on the kitchen window. वहां पे बहुत होता है ना किचन विंडो पे. तो he said, Mama, if you look outside the kitchen window, we have a so garden. many plants. हमारे पास गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं. तो तुम्हें विंडो सिल के ऊपर प्लांट्स रखने की जरूरत नहीं है. So my sister said, yeah, actually you're right. So he didn't buy the plants. So what I'm saying is, थोड़ा I think हमें beyond desire सोचना पड़ेगा. You know, we are so interested in beautifying our home that we are unable to appreciate the beauty outside the home. So I feel कि कहीं ना ये अगेन हमारे मूड मन से आता है. हमारा मन लाइक मूड ना, मूड माने डोंकी है ना. हमारा मन ऐसा है कि एक चीज चाहिए तो चाहिए. हाँ, किसी के घर में मैंने ये देखा तो मेरे घर में भी वो चाहिए. यार क्यों चाहिए? You don't need actually more than one sofa set in your house. Actually जितने लोग उतनी कुर्सियां होनी चाहिए. पर लोग 2 और कुर्सियां 8. मतलब इट डजंट मेक. मेरे घर में हम 2 लोग हैं, हमारी 2 ही कुर्सियां हैं. ऑन माई डाइनिंग टेबल जितने छोटा सा डाइनिंग टेबल है जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं और 2 ही कुर्सियां हैं. आई थिंक इफ वी बिकम मिनिमलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन लाइफ, तो मुझे लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी. प्रॉब्लम ही नहीं होगी बिल्कुल. पर हमारे घर में है 2 लोग और 8 कुर्सियां. मतलब जरूरत ही नहीं है. किचन में आपको पता है हाउस वाइव्स वो किचन से प्यार करती है ना. क्यों करती है मुझे पता नहीं है, बट दे लव द किचन. कोई भी चीज, प्रेशर कुकर तो दो, वो प्रेशर पैन, फिर ये कांच के बर्तन, फिर वो स्टील के बर्तन, फिर वो बोल्स, फिर ये सुंदर चाइना ग्लास के ये ग्लास. नहीं, मैं सोचूं कि भैया ये प्लेट आप कब यूज करेंगे? बिकॉज ऑन अ रेगुलर बेसिस मुझे लग रहा है हमको तो स्टील प्लेट यूज करनी चाहिए कि भाई आके साफ कर ले, द ग्लास प्लेट इज नॉट ब्रोकन. तो आप वो ग्लास प्लेट कब यूज करेंगे? कब? वेन? अगर आप एक्चुअली राजेंद्र अपनी वाइफ से पूछे, आपने जो भी ना, हमारे जी जी घरों में होता है कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर सब क्रॉकरी, लगा के रखा हुआ है. वो जी. क्रॉकरी कभी नहीं निकलेगी. ओनली दिवाली में अननेसेसरी सफाई होगी और वापस हम उस चीज को वहां रख देंगे. ठीक है. तो इट इज सच अ वेस्ट, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ स्पेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से. अगर मैं आपको मेरा किचन दिखाऊं, छोटा सा किचन है जिसमें उतने ही बर्तन है जो मैं रोज यूज करती हूँ. मेरे पास प्लेट है, थाली है, जो 40 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे 12 स्टील की प्लेट दी थी. वो आज भी हम उसी में खाना खाते हैं. ठीक है. और ग्लास, मेरे पास 5 कांच के ग्लास है. रत्ना ने पिया भी होगा उस कांच में, कांच के ग्लास में. तो मेरे पास 5 ही कांच के ग्लास है जो मेरे फादर ने ईस्ट जी. अफ्रीका में जब वो थे तब उन्होंने खरीदे थे. मतलब 70 साल पहले. वो अभी 5. तक है. अभी तक है वो. I have to show you that glass. Wait. मैम वो फूटे नहीं अभी तक. लेट द मैम. सो मेरे यहाँ तो रोज ही फूटते रहते हैं. ये 70 years. ये हमारे ग्लास है. 70 साल से हैं. हाँ, ये 70 साल पुराने ग्लास होंगे. ठीक है. जी. ये दिस इज फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. दिस इज कॉल्ड
अनब्रेकेबल। अगर आप अनब्रेकेबल। ये फेंकेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तोड़ सच के है। दिखाइए। अनब्रेकेबल जर्मन ग्लास से बना हुआ। मेरे पास 5 ऐसे ग्लासेस है जिसके अंदर हम पानी पीते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली ग्लास में पानी पीती भी नहीं हूँ। मेरे पास ये एक है। पूरे इसी से पूरा पीता है। दिन इसको मैं भर भर के पानी पीती हूँ। मेरे हस्बैंड के पास भी एक है। तो हम कांच के ग्लास में पानी पीते भी नहीं है, ठीक है। पर ये किसी कोई आएगा तो उसको देंगे हम इसमें। इतना मिनिमलिस्टिक मेरे पास चीजें हैं कि आई एम सो हैप्पी। क्योंकि मुझे, मैं अपना किचन 1 घंटे में सफाई कर सक, 1 घंटा भी नहीं, हाफ एन आवर में, बिकॉज मेरे पास सामान ही बहुत कम है। आई एम हैप्पीएस्ट। दैट्स ग्रेट मैम। यू रियली हैव टू बी लाइक दैट, अदरवाइज आपका दिन इन्हीं फालतू चीजों में टाइम वेस्ट है। काफी चीजें में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल मुझे सही। टाइम वेस्ट करना नहीं है, लाइफ अपनी वेस्ट नहीं करनी है ये ग्लास और ये बर्तन और ये प्लेटों में, ठीक है। तो ये यही अपरिग्रह है। अपरिग्रह यही है रियल। मिनिमम जी परिग्रह। मिनिमम रखो। जी हाँ, जी जी कुशन जी, बिल्कुल। कवर पता है, हाउसवाइफ्स कितने कुशन कवर खरीदती है। रत्ना हंस रही है। बहुत सारे, कहाँ भी बहुत सारे। जाएगी कुशन कवर्स ले आएगी। कब मतलब भैया, कुशन है 5 या कुशन है 10 और कवर्स है 200। वाह, क्यों? नो नीड, नो नीड। यू नो, इट इज वेरी, आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्पिरिचुअल बातें जरूर करते हैं, ये वर्च्यूज की बातें की आज हमने, पर अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो इट हम्म, इज जस्ट टॉक। फिर भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ते रहो, है ना। बट इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज अदरवाइज ना, ट्रस्ट मी, आपकी मृत्यु जब होगी, मैं तो यही सोचती हूँ, व्हेन आई एम डाइंग, व्हेन आई एम डेड, people should have no problems clearing my cupboard. There should be such limited things in the cupboard that they can just put it in one suitcase and give it away. मैम एक कमेंट ये आया है होना आपके चाहिए। लिए। नेक्स्ट क्लास इसी पे होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, यस यस, बिल्कुल। बहुत Otherwise, अब इंटरेस्टिंग, बहुत आपका इंटरेस्टिंग था Please, ये। ma'am, जी please. आप परेशान हो जाएंगे, रियली जी। परेशान हो जाएंगे। मेरे फादर से मैंने ये सीखा, when he passed away, he had 3 pants and 4 shirts in his cupboard. That's all. And we gave it away to the watchman और उनको दे दिया हमने। 3 pant and 4 shirts. That's all he had. And then he had one, वो कुर्ता पजामा रात को पहनते थे, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा थे, वो भी हमने दे दिया। We cleared his cupboard in 10 minutes because उतने ही कपड़े थे उनके पास। उन्हीं से मैंने सीखा। खैर मेरे पास तो उतने कपड़े, मेरे पास तो बहुत ज्यादा कपड़े हैं, बट हाँ, पर मैं अभी उस स्थिति में पहुंची नहीं हूँ, बट पहुंचूंगी कभी ना कभी तो। बट एटलीस्ट आई एम अवेयर कि मुझे ये पहुंचना है वहां पे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शकुंतला, रत्ना, ये जो मेरे सब है ना, आजू बाजू के लोग, ये मुझे गिफ्ट्स देते रहते हैं और मेरे कबर्ड भरते रहते हैं। तो एक्चुअली दे आर ऑल दीज पीपल आर टू ब्लेम, यू नो, अननेसेसरली मेरा कबर्ड भरने का इनका इनका फॉल्ट है। बट आई लव देम ऑफ कोर्स, बट एंड ऑल देयर गिफ्ट्स आल्सो। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट, रियली। जी So I मैम know लेकिन जब आप बार बार जाते हैं I can end with Swami ji. दुआ करने के लिए। Swami can चिन्मया जी के वहां एक आदमी आया था, ओके। सो स्वामी जी को उन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव घड़ी गिफ्ट की थी, ओके। ये एक्चुअली ट्रू है, ये सच्ची सच्ची कहानी है। तो एक बहुत एक्सपेंसिव घड़ी दुबई से वो उनका जो आदमी था, साधक, वो लेकर आया था। स्वामी जी, मैं आपके लिए दुबई से इतनी बहुत सुंदर घड़ी है, उसमें डायमंड जुड़े हुए, ये वो एंड ऑल। तो स्वामी जी ने वो ले ली, ठीक है। और फिर कोई और बंदा खड़ा था, उसने कहा कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आज आज मेरी बर्थडे है। तो तो स्वामी दो जी घड़ी लो। उस आदमी को दे दी कि भैया ये ले तेरी बर्थडे गिफ्ट। तो वो आदमी जो गिफ्ट लेकर आया था, उसने कहा स्वामी जी, मैंने इतने प्यार से आपके लिए घड़ी दी आपको। तो स्वामी जी ने कहा तुमने दे दी, मैंने ले ली,
अब मैं क्या करूं इसके साथ में, दैट ये शुड मेरी नॉट बी जिम्मेदारी। योर कंसर्न। तो वो अटैचमेंट तुम्हें नहीं होनी चाहिए। एंड उन्होंने वो एक्सपेंसिव कुछ लाख रुपए की घड़ी वो बर्थडे बॉय को दे दी। तो ये जो गिफ्ट्स मुझे इतने प्यार से मिलती है, इनको मैं सर्क्यूलेट करती हूँ, सो दैट देयर लव गोज टू अदर्स ऑल्सो। That's also. तो प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। सो